So, hello everyone, welcome back to Ansarkari. We are starting with the series of previous year question papers regarding CSAT. So, today we are going to see the first 40 questions from 2013 CSAT paper. So, first we have this passage. I hope that our co-aspirants must have gone through all these questions beforehand. So, we'll not be reading it again word by word. We'll just focus upon how we can arrive at the right solution. So, first question regarding this is that this passage is regarding democracy. So, it is asking which is the options amongst all these options, which is the closest to the view of democracy as mentioned. So, according to me, it should be option number one, which is the subject of democracy is a model due to desire to portray it as a Western concept alien to non-Western countries. आंसर Yes. सर सी है इसका। और जब हम एक ही बात करते हैं तो वो थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से मैंने सॉल्व किया था तो थोड़े नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाता है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो फोर्स नहीं किया गया, वो एक सिविलाइज तरीका है रहने का, इसलिए ए को मैंने ड्रॉप किया था। बी में भी ये है कि इम्पोज किया गया उस तरह का, उसलिए उसको बी को छोड़ा था। सी को बोल सकते हैं हम। सी में एग्जैक्ट अगर हम पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी सेंस आती है, इसलिए मैंने सी पिक किया था। आंसर सी है इसका फर्स्ट। हम्म। हाँ, इसमें आई थिंक मेरा थोड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन हो गया। इसमें बोले क्लोजेस्ट टू द व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, तो जो परसेप्शन है मैंने उसको चूज कर लिया, सो दैट इज व्हाई इट गॉट इनकरेक्ट। सी में जो व्यू का रिगार्डिंग है वो सी में ज्यादा ब्रॉड है कि इट इज नॉट इसेंशियली अ वेस्टर्न आइडिया, ये एक व्यू इसके ऊपर है। देन सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि assumptions कौन सी है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज. So many of the non-Western countries are unable to have democracy because they take democracy to be a specialized culture product of West. This is one it can be one of the assumptions. And second, Western countries are always trying to impose. So this went thoda sa extreme because of are always वो possible नहीं हो सकता. तो I think it should be A. One only is can be the most probable assumption here. डी आएगा क्योंकि वन भी नहीं है, वन में भी प्रॉपर वो जस्टिफाई नहीं करता। अगर हम अजम्पशन भी देखते हैं तो वो बोलते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक वे है जिसको कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं और उस तरह से सिविलाइज होते हैं। Many of the non-Western countries are unable to have democracy. They नहीं, बट आई थिंक ये पैराग्राफ तो बोल रहा है ना, यही चीज तो बोल रहा है कि जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें डेमोक्रेसी इसलिए नहीं होती बिकॉज दे सी कि वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न आइडिया है तो वो जो लिमिटेड लोगों की अवधारणा है, वो परसेप्शन है कि इस तरह से हम सोच सकते हैं। वो पैराग्राफ इस तरह से नहीं बोल रहा। अगर हम पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते बट वो अजम्पशन बोल रहा है क्वेश्चन, तो आई थिंक ये हो सकते हैं। तो आप इसको ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाई कर रहे हो? ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाई किया है, डी है। और मेरे अकॉर्डिंग भी डी था, मैंने भी डी पिक किया था इनको पढ़ने के बाद। ओके, देन सेकंड पैसेज, इट इज बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. So third question is about ki which of the following should be the practice in good corporate governance. So I'll go with only the first statement. ए करेक्ट है, ओनली वन। Second and third are incorrect. Question four. Here again we have to identify the major benefits of good corporate governance. So again it should be only the first statement which should be correct. ओनली है वन। Hmm. Then next passage is about malnutrition, and again what is our idea about the causes behind it. So fifth question is we have to identify that what the passage believes that malnutrition in children can be reduced by which means. So I think it should be C option, that if the food needs of younger children they are known, we can better able to reduce this challenge of malnutrition. ऑप्शन सी। Okay. Then sixth question is according to the author, poverty is not the main cause of malnutrition, but the fact that again we have two statements. So I believe only first one is correct. आंसर बी है इसका, ओनली टू करेक्ट है। Take care of younger ones is not a priority for the working mothers. Awareness of ठीक है, but I thought कि second incorrect इसलिए होगा because there is no direct mention of the second half of this statement कि public health authorities, because
कंप्लीटली इट इज सेइंग कि दे आर नॉट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, वो स्प्रेड ही नहीं कर रहे, तो ऐसा हम आई डोंट थिंक सो इसको मान सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज अवेयरनेस स्प्रेड ही नहीं करे, तो दैट इज व्हाई आई डिडंट पिक अप सेकंड ऑप्शन। मैंने भी इसलिए फर्स्ट ही टिक किया था, पर जो आंसर की में ओनली टू है। ठीक है। देन पैसेज नंबर 4, on this basis we have question number 7. So पूछा need for the policy intervention to mitigate the risk in agriculture is because ऑप्शन सी जो बोल रहा है मेथड्स अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स वो एडिक्वेट नहीं है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं बाय फार्मर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। Then eighth question is following observations what can be made on the basis of the passage. So option B states no single risk specific policy can be again sufficient. बी करेक्ट है। Then ninth, we have to pick up on the basis of above three statements हमें दे रखे हैं वो जो प्राइमरी ग्रुप की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी ग्रुप हमेशा स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड द मेंबर्स लाइक दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ईच अदर, मतलब इंटीमेसी एक इसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, तो दोनों चीज होनी चाहिए, स्मॉल साइज एंड इंटीमेसी, और फैमिली उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आई बिलीव डी, क्योंकि डी एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। डी करेक्ट है। डी, डी इज करेक्ट। यस मानसी। मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप नो ईच अदर इंटीमेटली, क्योंकि पहले थ्री स्टेटमेंट्स मतलब वो ज्यादा एब्सोल्यूट इन नेचर है, जैसे पहला बोल रहा है सारी फैमिलीज प्राइमरी ग्रुप्स हम बोल सकते हैं, जैसे हमें स्टेटमेंट नंबर 3 दे रखा है कि मे बी लिखा है, फैमिली मे बी एन एग्जाम्पल, तो दैट्स हाउ वी कैन डिसाइफर इट। Question number 10. So we have again sorted now mathematical questions in between. So there are four friends which are given, and then certain assumptions are given on the basis of this. So we have to here identify कि फोर फ्रेंड्स ए बी सी डी में से किसको सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। सो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, वी लुक एट हेयर ए सी और डी के बारे में, तो इक्वेशन फॉर्म में पहले हम इसको लिख लेंगे। स्मॉलेस्ट निकालना है तो पहले यहाँ से हमें रिलेशनशिप भी निकालनी पड़ेगी बिटवीन बी एंड सी, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखी है, तो उसमें भी अगर हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके इक्वेशन को, तो उसके बाद भी सी के पास ही ज्यादा अमाउंट होगा, बट हमें निकालना है किसके पास सबसे लोवेस्ट होगा, तो ए विल गेट द लोवेस्ट अमाउंट। So what is the right answer, Divya? ऑप्शन ए। Okay, question number 11. So here again we are given few statements and the relationships and the means of transportation between different cities. So we have four questions on the basis of this given information. So question 11. So firstly, I have drawn this map here, जो भी given information है, so that it becomes easier to answer the questions. So question number 11 is asking कि which mode of transport would help one to reach R starting from Q. So we have to go from R to Q, but without changing the mode of transportation. So जो information है, अगर हमें R से Q जाना है, तो अगर आप यहाँ देखोगे आर से क्यू जाने के लिए हम बोट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर से आप पहले पी जाओगे उसके बाद पी से क्यू जाओगे, और वो बोल रहे सिंगल मोड के थ्रू आप कौन सा मोड फिर अडॉप्ट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो आपके पास बोट का ऑप्शन है। सो 11 का आंसर बोट ए होना चाहिए। यस मानसी, ऑप्शन ए बोट। देन 12th में इफ अ पर्सन विजिट्स again each of the places starting from P and Q, which of the following places must he visit twice, तो आर होगा यहाँ पे। ऑप्शन आर बी। सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे पी टू पी हमें जाना है, तो पहले पी से क्यू जाओगे, क्यू से टी जाना है, टी से फिर आर जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं सारी लोकेशंस पे आपको एक बार जाना है, फिर आर से आप एस जाओगे, अब एस के बाद कहीं और जा नहीं सकते, तो इसलिए वापस पे आपको आर ही आना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर पी पे जाओगे, तो इसलिए आर पे आपको दो बारी वापस आना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन आर इज करेक्ट ना। हाँ। 13th क्वेश्चन बोल रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी, मतलब डायरेक्ट इन अगर हम देखते हैं डायग्राम में पी टी टी एस और क्यू आर,
इनमें से कोई भी लोकेशन डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अगर आप देखोगे पी से टी भी डायरेक्ट नहीं है, पी से पहले आपको क्यू जाना पड़ेगा, उसके बाद टी जा सकते हो। सो ऑप्शन डी शुड बी राइट। यस मानसी। Then here, 14th question is about between which two cities among the pairs of the cities given below are there maximum travel options available? दो cities के बीच में जाने के लिए. So in this case, it should be Q and S. तो आपको पहले यहाँ assess करना पड़ेगा properly. So I've written it down. Travel options available जो भी हमें options दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा Q और S के बीच में travel options हैं कि आप कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हो। तो आई थिंक इट शुड बी ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। यस मानसी, ऑप्शन। ओके, वेट अ मिनट। देन अनदर क्वेश्चन इज अगेन कुछ एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है यहाँ पे। 15th क्वेश्चन इज इफ वाई इज सिलेक्टेड बी इज रिजेक्टेड। तो टीम, जैसे यहाँ पे एक टेनिस कोच है, उनको 4 प्लेयर्स की टीम बनानी है, हमारे पास 7 प्लेयर्स हैं, ये हमें दे रखा है ए बी सी। और जो 4 लोगों की टीम बनेगी उसमें से एटलीस्ट 2 शुड बी मेल, मतलब कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेल्स ये हैं, फीमेल्स हमें ये दे रखा है। और हमें ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि कौन कौन से प्लेयर्स साथ में कंपैटिबली नहीं खेल सकते। बट जो कंडीशन हमें एक और मतलब फुलफिल करनी है जब हम 4 मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, कि सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। सो उस बेसिस पे यहाँ पे एक 15th क्वेश्चन है कि अगर वाई सिलेक्ट हो रहा है, बी रिजेक्ट हो रहा है, तो टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो हेयर आई हैव रिटन डाउन, जो पहले हमें यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन है, 7 प्लेयर्स मेल्स फीमेल्स, 4 हमें सिलेक्ट करने हैं, 2 शुड बी मेल्स। ये दे रखा है बी और डब्ल्यू साथ में सिलेक्ट नहीं हो सकते, सी और जेड नहीं हो सकते, डब्ल्यू और वाई नहीं हो सकते। तो वाई सिलेक्ट हो गया तो एक मेंबर वाई हो गया, बी रिजेक्ट हो जाएगा तो बी नहीं हो सकता है इसमें से, और 2 मेल मेंबर्स होने ही चाहिए। तो बी एलिमिनेट हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो ए और सी तो होगा ही होगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला उसमें कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। तो इसलिए वाई होगा ग्रुप में, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ए और सी होंगे होंगे, क्योंकि 2 मेल मेंबर्स ये हैं। और अब हमें देखना है इसमें से कौन से होंगे। तो इसमें से बी रिजेक्ट हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ एक सिलेक्टेड ऑलरेडी, वाई इज सिलेक्टेड। अब इसमें से जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ पे ना तो वाई होगा ना जेड होगा, क्योंकि हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वाई तो ऑलरेडी है बट वाई डब्ल्यू के साथ नहीं, मतलब कंफर्टेबल, तो इसलिए डब्ल्यू भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। वाई हम सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके अलावा अब हमें देखना है एक्स और जेड के बीच में। तो ए, क्योंकि ऑलरेडी सी है, सी सिलेक्ट कर चुके हैं, बट सी जेड के साथ नहीं खेल सकता है, तो इसलिए जेड भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो इसलिए हमारे पास एक्स बचा, तो इसलिए यहाँ पे एक्स होगा, एंड ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट। ये ए सी और एक्स वाई विल बी सिलेक्टेड। यस मानसी, ऑप्शन बी। आई होप ये क्लियर भी है इसका एक्सप्लेनेशन। यस मानसी। देन 16 क्वेश्चन में यहाँ पे सेम वही पैटर्न है, बी सिलेक्ट हो रहा है, वाई रिजेक्ट हो रहा है, एंड द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। सो 16th पे अगर हम जाते हैं, बी सिलेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वाई रिजेक्ट हो रहा है। सो अगेन फिर से सेम कंडीशंस ही हमें देखनी पड़ेगी। तो बी सिलेक्ट हो रहा है, एक मेल मेंबर हो गया है, वाई इज रिजेक्टेड, तो यहाँ से वाई हम एलिमिनेट कर देंगे, तो बी पहले हमने लिख लिया। बी सिलेक्ट हो रहा है तो डब्ल्यू सिलेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों कंपैटिबल नहीं है, तो डब्ल्यू भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, वाई रिजेक्टेड है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अब हमारे पास बी आ गया। अब इसमें से एक्स सी और ए बचा, क्योंकि डब्ल्यू नहीं हो सकता है, सी होगा तो जेड नहीं हो सकता है, और 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। तो इस बेसिस पे सी भी होगा, ए भी होगा, और अगर सी हो रहा है तो जेड नहीं है, क्योंकि जेड सी और जेड कंपैटिबल नहीं है, तो इसलिए बी एक्स और सी ए। सो इट मींस ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट, क्योंकि आप ऑप्शन को भी देख सकते हो ऑन द बेसिस कि वाई, तो क्वेश्चन ने बोला ही है कि वाई रिजेक्टेड है, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता आंसर में। और इन 3 ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो ए बी सी तो है ही है, तो आप पहले ही लिख लो यहाँ पे, बी तो है ही, क्वेश्चन बोल रहे हैं
ए और सी होगा ही होगा, तो ए और सी आपने लिख लिया है। यहाँ पे फिर आप कंपैटिबली डायरेक्टली चेक करो कि सी है तो जेड नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यस मानसी, ऑप्शन सी। Then 17th, if all the three males are selected, means A, B, C select हो रहा है, तीनों males A given है, then how many combinations of four member teams are possible? So यहाँ पे हमें combinations निकालने, तीन members given है हमें, तो यहाँ पे अगेन फिर से हम कंपैटिबिलिटी ही चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ए बी सी है तो बी है तो डब्ल्यू भी नहीं होगा, सी है जेड भी नहीं होगा, तो बचा वाई। वाई हो सकता है तो एक कॉम्बिनेशन ही हो गया, ए बी सी वाई, और ए बी सी एक्स हुआ। तो बस कंपैटिबिलिटी देखना पड़ेगा, डब्ल्यू और जेड किसी भी केस में नहीं हो सकते हैं, और अगेन वाई हो सकता है। तो यहाँ पे बचा एक और एक्स, तो डब्ल्यू जेड तो एलिमिनेट हो ही गया, और ए बी सी हमें गिवन है ही, एक और सिलेक्ट जो कर सकते हैं एक्स और वाई, तो दो ही कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस मानसी, ऑप्शन बी। देन ये यहाँ पे कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन, तो ये इजी टू सॉल्व है। ये म्यूजिक डायरेक्टर है फिल्म के, वांट्स टू सिलेक्ट 4 पीपल, 7 पर्सन्स आर देयर, उनके नेम्स गिवन है, एंड यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कौन साथ में वर्क नहीं कर सकता। दो कॉम्बिनेशन ये हैं, और जो साथ में काम कर सकता है मुकेश एंड कुणाल। नाउ वी हैव टू सी कि एक्सेप्टेबल ग्रुप्स कौन कौन सा हो सकता है, तो इसमें सिंपली आप जस्ट ऑप्शंस देखो डायरेक्टली कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, जैसे रोहित, शोभा, कुणाल एंड कौशल। बट यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी वन ऑफ द मेंबर्स की, जैसे रोहित है और तान्या की कंपैटिबिलिटी नहीं है, और कुणाल और शोभा, तो यहाँ पे कुणाल और शोभा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये एलिमिनेटेड। ऑप्शन टू, तान्या, कौशल, शोभा, रोहित, यहाँ पे भी कंपैटिबिलिटी रोहित और तान्या की नहीं है, तो यहाँ पे भी रोहित और तान्या दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन सी में सब कंपैटिबल है, क्योंकि मुकेश और कुणाल साथ में काम करेंगे, तो इसलिए मुकेश कुणाल दोनों है, जसवंत और तान्या है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी वाला भी कोई इशू नहीं है, तो इसलिए दिस वुड बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे भी कंपैटिबिलिटी मिसमैच है, क्योंकि रोहित और तान्या साथ में नहीं काम कर सकते। Then 19th question. There are 5 people A, B, C, D, E seated around a round table. Every chair is placed equidistant. ये given information है, तो C is seated next to A इस basis पे 19th question. So ये जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं उस बेसिस पे आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, और फिर हमें इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, ये ट्रू है, ए एंड ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो अगर मैं इसको यहाँ सिंपली ड्रॉ करूँ, ये राउंड टेबल है, यहाँ पे पहले आप ए लिख लो, देन हमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो ए और सी साथ में सीटेड है। उसके अलावा ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो एक सी हो गया, एक और सीट यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे डी आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो इसका मतलब ये सीट खाली है, तो यहाँ पे बी होगा, और एक और सीट खाली है, तो यहाँ पे ई के लिए बचे, ई मेंबर बचा, तो ई वुड टेक दिस प्लेस। अब दो स्टेटमेंट है डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो देखोगे हाँ दोनों नेक्स्ट टू एक साथ हैं। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो दोनों यहाँ पे भी, तो आई थिंक सी शुड बी द राइट ऑप्शन। काइंडली वेरीफाई प्लीज। यस मानसी, सी इज द करेक्ट आंसर। Then another question. So again, given information on the basis of sports, और कौन से प्लेयर साथ में कौन कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, तो इसमें बताना है हु डज नॉट प्ले हॉकी। सो अगर आप सिंपली ऑप्शन देखोगे, डी देखोगे पहले, तो डी बॉलर डज नॉट प्ले हॉकी, तो डी हॉकी खेलेगा। यहाँ पे सी एंड डी दे आर प्लेइंग हॉकी बास्केटबॉल, सी सी तो खेल रहा है हॉकी। बी का देखेंगे तो बी यहाँ पे बी एंड सी दे प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो ए विल नॉट प्ले हॉकी। ए और बी एक यहाँ कॉम्बिनेशन है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे, ए और डी बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो ए शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी। देन हु प्लेज फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, तीनों हमें देखना है, तीनों स्पोर्ट कौन सा प्लेयर खेल रहा है। तो अगर आप डी को देखोगे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, तो डी यहाँ पे है और इधर है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, तीनों स्पोर्ट्स हो रहे हैं, दिस बिकम्स द राइट ऑप्शन।
ऑप्शन ए। नाउ विच गेम डू बी सी एंड डी प्ले? तो देखना है तीनों प्लेयर्स कौन सा एक स्पोर्ट खेलेंगे, तो आप वो देख सकते हो गिवन इन्फॉर्मेशन से हॉकी होना चाहिए, बी सी और डी। देखोगे बी सी एंड डी, तो फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी। हॉकी होना चाहिए, हॉकी इनके बीच में कॉमन है। यहाँ पे भी हॉकी है और डी हॉकी भी खेलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सारी कंडीशंस मीट करने का देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट, तो सिर्फ हॉकी ही फिट होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, इट स्टेट्स कि गीता इज ओल्डर देन हर कजन मीना, तो गीता ओल्डर देन मीना। मीना का ब्रदर इज बिपिन, तो बिपिन इज ओल्डर देन गीता, तो बिपिन इज ओल्डर देन गीता। अब इस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो, जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, यहाँ से आप बोलोगे कि गीता इज ओल्डर देन मीना, तो एक ही एस्पेक्ट हो गया, और जो बिपिन है दैट इज ऑल्सो ओल्डर देन गीता, तो मतलब एल्डेस्ट इनमें से बिपिन है और मीना वो इनमें से यंगेस्ट है। तो हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है, तो मीना इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल थ्री। इस पे आप देखोगे तो कोई भी फिट नहीं होगा, दे आर लाइक नॉट टू द पॉइंट। ऑप्शन डी। Then again, we have passage. So this is about the financial markets. If you go through it once, then question 24 is there. So it is asking us, according to the passage, the financial markets and the emerging market economies, including India, had the adverse impact in recent years due to weak global economic prospects है, uncertainties थी, sovereign risk concerns भी थे, but bad monsoon और crops का कहीं mention नहीं है passage में. It should be 1, 2 and 3. ऑप्शन बी। Then the Indian financial markets are affected by global changes, mainly due to what reasons? So it is because of again globalization, the global linkages and integration increase हुए हैं. ऑप्शन सी। Then, according to the passage, Indian financial system, banks' ability to withstand stress is critical to ensure overall financial stability because Indian financial system is dominated by banks. Major domination banks का India में इसीलिए important है. ऑप्शन डी। Okay, then 27th, risk and liquidity management assumes more importance क्योंकि globalization है, consolidation, deregulation, diversification. ये directly passage में इधर mentioned भी है. Globalization, consolidation, but यहाँ पे more financial inclusion की कोई बात नहीं है, तो it is 1, 2, 3. ऑप्शन ए। Okay. There are 5 hobby clubs. Then again, इस basis पे जो information है, ये सारे स्पोर्ट्स या हॉबीज हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि गार्डनिंग ग्रुप एवरी सेकेंड डे मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक एवरी थर्ड डे, चेस एवरी फोर्थ, याचिंग एवरी यॉटिंग जो एवरी फिफ्थ, एंड फोटोग्राफी एवरी सिक्स। तो हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 मेंबर्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 days? सो फॉर दिस यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट एलसीएम, आप निकाल लो, ये जो हमें डेज दे रखे हैं, एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो इसका एलसीएम आप निकालोगे थ्रू दिस, इट विल बी 60, एंड टोटल हमें 180 डेज का निकालना है कि कितने बार एक दिन पे मिलेंगे तीन सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स आर देयर, तो 180 को आप 60 से डिवाइड करोगे, तो 3 टाइम्स, तो मतलब एवरी 60 days वो लोग फिर एक दिन जो होता है, पांचों ग्रुप्स जो हैं एक साथ मिलते हैं, तो इसलिए 60 को फिर आप 180 से डिवाइड करोगे, तो 3 times दे विल मीट. सो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. Now here we have the information कि there are 5 different cities A B C D E. Sorry, cities are P Q R S T और ये these are people. So यहाँ पे ये information हमें given है, not correct हमें identify करना है. So on the basis of this I have like written it down here. तो P Q R S T ये सब cities हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि बी और ई क्यू को बिलोंग नहीं करते हैं. इसके बेसिस पे जहाँ पे ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इसके बेसिस पे आप क्लियरली निकाल सकते हो कि कौन सा मेंबर कौन सी सिटी को बिलोंग करेगा. जैसे यहाँ पे बी सी डी ई हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ ए बचा इस केस में, तो इसलिए ए यहाँ आ जाएगा. तो पहले आप डायरेक्टली ए लिख सकते हो, बी एंड ई, ए और सी हो ही नहीं सकते हैं आर के लिए, तो ओनली डी विल बी लेफ्ट.
ए ऑलरेडी हैज गॉन टू क्यू, और ए हो भी नहीं सकते। सो यहाँ पे आप निकालोगे सर्टेनिटी के साथ कि कौन सा मेंबर कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट है कि यहाँ पे सी बिलोंग्स टू पी, डी बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू क्यू, तो ये तीनों ठीक है। हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, विच इज दिस। तो ऑप्शन बी। डी। हम्म 30th में वी सी 7 men आर गिवन, क्यू, दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू सेम ऑर्डर में, क्वेश्चन बोल रहे हैं इन दैट ऑर्डर इटसेल्फ, एंड कलर्स दे रखे हैं जो कैप्स हैं, तो कौन सा मेंबर कौन से कलर की कैप देख सकता है, तो ये हमें दे रखी है इंफॉर्मेशन। इससे आप आराम से निकाल सकते हो कि लाइक विच पर्सन इज वेयरिंग दी कैप ऑफ विच कलर, तो ग्रीन ऑरेंज आ जाएगा, क्योंकि ग्रीन का लिए लिखा है कि सारे कलर्स देख सकता है इन फ्रंट एक्सेप्ट ऑरेंज, तो इसका मतलब ग्रीन ने खुद ऑरेंज कैप पहनी हुई है। तो ऐसे करके यू विल गेट टू नो अबाउट कि विच मेंबर इज वेयरिंग विच कलर कैप, एंड वी हैव टू टेल कि F is wearing the cap of which color? Say it should be red. ऑप्शन सी। Okay. Now here we have very simple question. So आप simply equation लिख लो. There are some balls of red, green, yellow color. ने बोलो there are as many red balls as there are yellow balls. So means red और yellow balls का number equal है. एक equation ये हो गई, और then there are twice as many yellow balls as there are green ones. तो yellow twice है, तो yellow will be twice of the green balls. तो दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। now number of red balls हमें निकालनी है, तो for this you can simply see रेड और येलो इक्वल है, येलो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रीन, तो आप सिंपली येलो का यहाँ पे पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, येलो जो यहाँ है इक्वल टू 2 ग्रीन, तो रेड विल टर्न आउट टू बी ट्वाइस द नंबर ऑफ ग्रीन। सो ऑप्शन बी विल बी राइट कि रेड जो है डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है। यस मानसी, ऑप्शन बी। देन पैसेज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड मिनरल ऑयल कैसे बनता है उसके बेसिस पे पैसेज है। So mineral oil deposits under the sea do not get completely decomposed because जो रॉक है रॉक बन जाता है, और उसके वजह से ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाती, तो एनारोबिक रिएक्शन होता है। Then here sedimentary rock leads to the formation of oil deposits because weight of जो overlaying sediment है it produces heat। तो ये simply statements आपको passage में direct मिल जाएंगे। Then class of 45 students, boys rank 20th, and दो बॉयज और ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 45 से 47 हो जाएंगे, एंड रैंक उसकी इट विल ड्रॉप बाय 1, मींस नाउ न्यू रैंक जो होगी वो 21 हो जाएगी। अब हमें वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द रिवर्स कि उसकी न्यू रैंक क्या होगी फ्रॉम द एंड, तो आप रिवर्स में सिंपली कैलकुलेट करोगे तो 27 आएगी। ऑप्शन सी। देन अ थीफ रनिंग एट, तो ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के ऊपर है। तो थीफ की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, चेज्ड बाय पुलिसमैन, पुलिसमैन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर्स। अब हमें टाइम निकालना है कि पुलिस थीफ को कितने टाइम में कैच कर पाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 ना। तो दिस इज यू कैन सी रिटन डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन, द डायग्राम। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ। तो रिलेटिव स्पीड आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि दोनों, पुलिस भी इसी डायरेक्शन में मूव करी और थीफ भी। तो थीफ की 8 है, पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो आप सब ट्रैक करोगे जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो और रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, तो ऑलवेज इट हैज टू बी सबट्रैक्टेड। तो 10 - 8, 2 किलोमीटर पर आवर वुड बी द स्पीड। अब हमें टाइम मिनट्स में निकालना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो स्पीड को पहले मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड मिल जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है हमको, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस था 100 मीटर्स, इज रिटन डाउन, एंड 9/5 आई थी, सॉरी 5/9 थी स्पीड, तो डिवाइड करना है स्पीड को। सो विल गेट 180 सेकेंड्स, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है, अब इसको मिनट्स, अब मिनट्स में कन्वर्ट कर दोगे, सो इट विल टर्न आउट टू बी 3 मिनट्स।
Now, here we have a train travels at a certain average speed. डिस्टेंस पहले दे रखा है 63 किलोमीटर, बट यहाँ पे स्पीड नहीं दे रखी, तो स्पीड आप एज्यूम कर सकते हो टू बी x किलोमीटर पर आवर. देन इट इज ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर, स्पीड इज 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, मतलब 6 + x किलोमीटर पर आवर जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस की स्पीड है. नाउ टोटल टाइम दे रखा है 3 आवर्स टोटल टाइम. सो ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, मतलब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So, यहाँ पे भी टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगेगा बस. तो ये फर्स्ट हाफ के लिए है इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड हाफ जो हमें दे रखी है, टोटल टाइम हमें दे रखा है 3 आवर्स, एंड फॉर्मूला ये टाइम डिस्टेंस स्पीड के लिए. सो आप यहाँ पे जब पुट करोगे, ये टोटल टाइम हो गया, टाइम इक्वल टू ये लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो फर्स्ट आपका ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे जो ये सेकेंड हाफ है 72 को डिवाइड करोगे विद 6 + x, तो ये इक्वेशन मिल गई. अब आप सिंपली जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनकी वैल्यूज को आप पुट कर सकते हो, सो दैट यू कैन सेव ऑन टाइम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस एंटायर इक्वेशन, क्योंकि थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी व्हेन यू सॉल्व इट इन सक्सेसिव स्टेप्स. सो ऑप्शंस की वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुट करी है, तो व्हेन यू पुट 42, आप इसको आगे और सॉल्व करोगे विद एलसीएम. सो एलसीएम लेके यू विल गेट द वैल्यू एज 3, मतलब 3 = 3 आना चाहिए, क्योंकि इस साइड ऑफ द इक्वेशन 3 है, यहाँ पे 3 है ना. तो व्हेन यू सॉल्व कि दोनों साइड इक्वेशंस की सेम आ रही है, तो इतना मतलब 42 बिकम्स द आंसर हेयर. ऑप्शन सी. Then again we have one of the passages. It is regarding the law, and it is regarding again agriculture and excessive use of fertilizer. So on this basis, we have a question which is about कि according to the passage, why should the discharge of the agricultural slurry into the water courses be restricted? Why it should be restricted? So one, though it should be that discharge may lead to eutrophication, clearly mentioned है. सेकेंड की वाटर कोर्सेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते जो डिकम्पोज कर सकते हैं, सॉइल में होते हैं. सॉइल की बात कर रहा है पैसेज, बट नॉट अबाउट वाटर. एंड ये कोई इस थीम पे बात नहीं हो रही, तो आई थिंक इट शुड बी 2 and 3. ऑप्शन सी 37 का. ऑप्शन सी कैसे हो सकता है, बिकॉज वो डायरेक्टली बोल नहीं रहा है पैसेज अकॉर्डिंग टू मी, तो कि लूजिंग न्यूट्रिएंट द न्यूट्रिएंट्स इन दिस वे इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इकोनॉमिकली. तो ये तो बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए आई एलिमिनेटेड इट. ठीक है चलो, एनीवेज यहाँ पे इतना सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते, तो 1 and 3 इज राइट. देन पैसेज रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट टू फर्टिलाइजर की बात कर रहा है पैसेज, जब आप उसको पढ़ोगे. सो क्वेश्चन बोल रहा है फर्टिलाइजर और पॉल्यूटेंट क्या है. तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट होगा जो डिस्चार्ज एग्रीकल्चरल स्लरी है, और जब वो डिकम्पोज हो जाता है वो फर्टिलाइजर बन जाता है सॉइल के लिए. ऑप्शन बी. And on the basis of same passage, we have to identify what are the effects of indiscriminate use of fertilizers. तो pollutants होंगे soil में, water में add, nutrients enrichment of water bodies, creation of algal blooms होता है, destruction of decomposers नहीं होगा जो soil में होते हैं. तो I think it should be 1, 3 and 4. ऑप्शन बी. 2 नहीं होगा. डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो सरवाइव करते हैं, वही तो डिकम्पोज करते हैं उसको बाकी आगे जाके. Then characteristics of a water body with the cultural eutrophication इसमें keyword है. So characteristics, loss of ecosystem services होगा, marine species they will die because of eutrophication. Loss of flora and fauna भी होगा. Loss of mineral nutrients नहीं होगा, इसका addition होगा. So I think 1 and 2 would be the right option. ऑप्शन बी. Then last question for today's video. The central theme of this passage क्या होगा. तो improper waste disposal की बात हो रही है, from agriculture can destroy aquatic ecosystem. This is the most balanced one which is being indicated by here the ऑप्शन passage. Option सी. okay. So passages में we can just say कि थोड़ा और better judge करने के लिए we can think more calmly. Otherwise we got I think 3 answers were incorrect, वो भी passage से ही थे. So we'll work more here, we'll concentrate more over here.
and we'll meet in the next part, in the next video on next Sunday. Thank you so much for joining us on Ansarkari.